Yes, take out illustration number 35. Take out illustration number 35, page number, illustration number 35, page number 6.56. Page number 6.56. Illustration number 35, page number 6.56. From the following balance sheet of DCX Limited, the additional information on 31st March 2018. Prepare cash flow statement. Balance sheet given है, and in additional information क्या given है? During the year, machine costing rupees 8 lakh, on which the accumulated depreciation was 3 lakh 20, was sold for rupees 6 lakh 40. Debentures were issued on 1st April 2017. Debentures were issued on 1st April 2017. अपन को इसका क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, राइट? क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट. सबसे पहले 2 पेजेस का फॉर्मेट बनाएंगे. देन थर्ड पेज पे अपन बनाएंगे वर्किंग नोट. देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. फिर यहाँ लिखेंगे अपन ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फिर यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. फिर अपन यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर फिर अपन यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट
adjustment for working capital changes, adjustment for working capital changes में लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिर हम लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल गिवन है। इन प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल इज 21 lakh, in previous year share capital is 21 lakh and in current year it is 30 lakh, and in current year it is 30 lakh. It means during the year हमने 9 lakh के क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। In beginning of the year share capital is 21 lakh and in end of the year it is 30 lakh. It means during the year हमने 9 lakh के क्या करे, शेयर्स इशू कर दिए। तो इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है 9 लाख, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 9 लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड इन नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L. So in beginning of the year balance of statement of P&L is 5 lakh. In beginning of the year balance of statement of P&L is 5 lakh and in end of the year it is 4 lakh, and in end of the year it is 4 lakh. It means there is a net loss. Beginning of the year में आपका statement of P&L का balance कितना था, beginning of the year में balance of statement of P&L is 5 lakh and in end of the year it is 4 lakh. तो ये 1 lakh से reduce हो रहा है. It means there is a net loss during the year. So net loss during the year is 1 lakh. तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. Net loss during the year is 1 lakh. तो हम इसको काय में लिखेंगे, ब्रैकेट में कितना है 1 lakh. Next is long term borrowings. In note number 2 it is given that long term borrowings includes 8% debenture. Long term borrowing includes 8% debenture. So in beginning of the year 8% debenture is 5 lakh and in the end of the year it is 8 lakh. It means during the year हमने 3 lakh rupees के debentures क्या करे, issue कर दिए. It means during the year हमने 3 lakh rupees के debentures क्या करे, issue कर दिए. And issue of debenture is a फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 lakh, इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 lakh. In additional information it is given that these debentures were issued on 1st April 2017. These debentures were issued on 1st April 2017. तो अपन ने ये जो 3 लाख के डिबेंचर्स हैं ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में इशू कर दिए थे. तो यानी ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितने के डिबेंचर्स थे, पूरे साल भर हमारे पास 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे. तो ड्यूरिंग द ईयर हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करेंगे, 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स पे. 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स पे अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे. एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर
Interest paid on debenture is a financing activity. Interest paid on debenture is a financing activity. तो यहाँ लिखेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने डिवेंचर थे ड्यूरिंग द ईयर? 5 लाख के थे और फिर अपन ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 3 लाख के डिवेंचर्स इशू कर दिए. ये कब इशू करें डिवेंचर? जो एडिशनल डिवेंचर 3 लाख के इशू में, ये कब इशू में? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो यानी पूरे साल भर हमारे पास 8 लाख रुपीज के डिवेंचर्स थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? डिवेंचर्स हैं 8% डिवेंचर. तो ये जो 8% है ये क्या शो कर रहा है कि हमें अपने डिवेंचर्स पे 8% की रेट से क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है. सो 8% ऑफ 8 लाख इज 64,000 और हम डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इससे कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा. तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस and non-operating expenses is added in adjustment for in operating activity. Non-operating expenses is added in adjustment for in operating activity. तो यहाँ लिखेंगे अपन interest on debenture. Interest on debenture कितना है? 64,000. तो इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो उसको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. नेक्स्ट इज योर शॉर्ट टर्म, सॉरी, नेक्स्ट इज योर ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी. ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी. तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ट्रेड पेबल इज 1 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,50,000. इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर वी इश्यू, ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड पेबल इज इंक्रीज बाय 50,000. इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड पेबल इज इंक्रीज बाय 50,000. तो ट्रेड पेबल आपकी लायबिलिटी है और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. इसको क्या, सॉरी, ट्रेड पेबल बिगिनिंग में कितना था? 1 लाख, एंड में हो गया 1,50,000. तो ट्रेड पेबल क्या है? आपकी करंट लायबिलिटी. और करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो इससे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई. तो वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज होने से इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया. यानी कैश का क्या हो गया? इनफ्लो हो गया. कितना? 50,000. करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी. मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया. मतलब कैश का क्या हो गया? इनफ्लो हो गया. कितना? 50,000. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन. सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. सर आपकी स्क्रीन और ऑडियो दोनों लैग कर रही है बहुत. नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक. यस, प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स. Provision for tax in previous year provision for tax is 56,000 and in end of the year provision for tax is 76,000 and there is no additional information regarding the provision for tax. So in beginning of the year provision for tax is 56,000 and in end of the year it is 76,000 and in end of the year it is 76,000. तो अपन अज्यूम करेंगे ये जो प्रोविजन अपन ने प्रीवियस ईयर में बनाया था 56,000, ये हमने करंट ईयर में क्या कर दिया? पे कर दिया. ये हमने करंट ईयर में क्या करा? पे कर दिया. तो इसको अपन लास्ट में लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. जो भी टैक्स पे करते हैं ड्यूरिंग द ईयर वो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लेस करते हैं. तो ये लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर
कितना हो गया आपका 56,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 56,000 और अपन ने ड्यूरिंग द ईयर 76,000 का क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 76,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 76,000। तो अपन ने 76,000 का क्या बनाया, प्रोविजन बनाया है। तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 76,000। तो जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अगर गिवन है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जो लास्ट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो अपन अज्यूम करेंगे कि ये टैक्स हमने ड्यूरिंग द ईयर पे करा है। तो जो टैक्स हमने ड्यूरिंग द ईयर पे करा है उसको तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में डिडक्ट कर देते हैं। तो अपन ने लास्ट में लिख दिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 56,000। और ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 76,000 का प्रोविजन बनाया है। इट इज प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, सो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेंजेबल एसेट्स। In note number 4 it is given that tangible assets includes machinery less accumulated depreciation. Accumulated depreciation means provision for depreciation account. Accumulated depreciation means provision for depreciation account. It means यहाँ पे provision for depreciation account क्या है, open है। तो अपन और नीचे इसमें एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो अपन हम इसका वर्किंग नोट में क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। तो एक तो अपन बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, वर्किंग नोट में अपन इसका अकाउंट बनाएंगे। एक तो अपन बनाएंगे मशीनरी अकाउंट और एक अपन बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इज 25 लाख। तो ये आपके मशीनरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 लाख। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 33 लाख, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 33 लाख। सिमिलरली इसी तरीके से अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसको क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको कितना, 5 लाख एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वो आपको दे रखा है कितना, 6 लाख। कितना दे रखा है आपको, 6 लाख। अब एडिशन इंफॉर्मेशन में से एडजस्टमेंट पढ़िए क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख, on which the accumulated depreciation was 3,20,000, on which accumulated depreciation was 3,20,000 is sold for rupees 6,40,000. It's sold for rupees 6,40,000. तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और आप अपने असेट को सेल करते हैं, तो जो असेट आपने सेल करा है उस सेल किए गए असेट पे जितना भी अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालकर हम अपने असेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या बोला मैंने, when provision for depreciation account is open and आप अपने असेट को सेल करते हैं
तो जो असेट आप सेल कर रहे हैं, जो असेट आप सेल कर रहे हैं उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया है वो सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी आपकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, provision for depreciation account debit to machinery account 3,20,000, 3,20,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए, मशीनरी से। तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी कितना, 3,20,000, एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,20,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,20,000, राइट। अब अपन ने मशीन को सेल करा, कितने में सेल करा, 6,40,000 में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 6,40,000, 6,40,000। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 6,40,000, बाय बैंक अकाउंट 6,40,000। अब अपन ने मशीन को सेल करा है, तो मशीन को सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मशीन को सेल करा है तो मशीन को सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे अपन, हमारी मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 8 लाख, कितनी है, 8 लाख। उस पर अब तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका, उस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो कितना लग चुका है, 3,20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग चुका है। इट मीन्स बुक वैल्यू ऑफ मशीन, इट मीन्स बुक वैल्यू ऑफ मशीन क्या है, $4,80,000। और 4,80,000 की मशीन को अपन ने सेल कर दिया, 4,80,000 की मशीन को अपन ने सेल कर दिया कितने में, 6,40,000 में अपन ने क्या करा, सेल कर दिया। तो ऑन द डेट ऑफ सेल बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 4,80,000 और हमने उसको 6,40,000 में क्या करा, सेल कर दिया। तो यानी यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आपको, 1,60,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 1,60,000। तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000। समझो आगे बात। अब इस मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो इस मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इस मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी। कितना है बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी, 16 लाख। कितना है आपका, 16 लाख। और यहां पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन,
इसका डेप्रिसिएशन में डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 4,20,000। 4,20,000। अब अपन को मशीन को सेल करने से 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एंड जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है? 1,60,000। 1,60,000। राइट। और क्या हुआ था? अपन ने 16 लाख रुपीस की मशीनरी परचेज करी। अपन ने 16 लाख रुपीस की क्या करी? मशीनरी परचेज करी। एंड परचेज ऑफ मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ मशीनरी 16 लाख। तो इससे आपके कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद अपन ने ड्यूरिंग द ईयर 6,40,000 की मशीन क्या करी? सेल करी। 6,40,000 की मशीन को अपन ने क्या करा है? सेल करा है। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी। तो कितने की मशीन अपन ने सेल करी है? 6,40,000 की। तो इससे कैश का इनफ्लो होगा। अपन ने 6,40,000 की मशीन को क्या करा? सेल कर दिया। और ड्यूरिंग द ईयर अपन ने अपने फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया है। ड्यूरिंग द ईयर अपन ने अपने फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया है कितने का? 4,20,000 का। सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे अपन ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। सो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितना डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने फिक्स्ड एसेट्स पे? 4,20,000 का। इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो इट विल बी एडेड इन द एडजस्टमेंट फॉर। तो अपन ने क्या करा? 1,60,000 का जो प्रॉफिट है इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर में माइनस कर दिया। अपन ने परचेज करी मशीन की तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो कर दिया। और अपन ने जो सेल करी है मशीनरी की, इट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अपन ने 4,20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में हमने इसको क्या करा? ऐड कर दिया। राइट। नाउ इनटेंजिबल एसेट्स। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इनटेंजिबल एसेट्स इज 7 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 8 लाख। तो यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख रुपीस के इनटेंजिबल एसेट्स को क्या करा? परचेज करा। तो इनटेंजिबल एसेट इज अ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स कितना है? 1 लाख। राइट। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट इन्वेस्टमेंट है। तो करंट इन्वेस्टमेंट इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस है करंट इन्वेस्टमेंट का 78,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 89,000। क्लोजिंग बैलेंस इज 89,000। इन्वेंट्री in beginning of the year inventory is 4 lakh and in end of the year it is 8 lakh. So increase in inventory. तो current asset increase हो रहा है
करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब हमने वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा 4 लाख। देन कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस इज 78,000 and closing balance of cash and bank balance is 37,000. So opening balance is 1,56,000 and closing balance is 1,26,000. ओके, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये एडलेस करेंगे तो ये आएगा आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है कितना, 3 लाख। 1 लाख में ये सब एडलेस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 लाख। ठीक है, अब इसमें ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो ये आएगा आपका नेट कैश यूज इन, नेगेटिव आ रहा है ये, तो नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो ये एडलेस करके नेगेटिव का 50,000 आ रहा है, नेगेटिव का 50,000 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव का कितना आएगा, 1,06,000। ये आएगा आपका नेट कैश, नेट कैश यूज इन, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना, 1,06,000। फिर ये एडलेस करेंगे तो ये भी नेगेटिव आ रहा है आपका, ये नेगेटिव आ रहा है आपका कितना, 10,60,000, 10,60,000 नेगेटिव आ रहा है ये आपका। तो ये कहलाएगा आपका नेट कैश, नेट कैश यूज इन, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद इसको एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 11,36,000, 11,36,000। तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको 1,06,000 का कैश आउटफ्लो हुआ था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10,60,000 का कैश का आउटफ्लो हुआ था, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो हो रहा है 11,36,000 का, कितना, 11,36,000 का। तो ये नेगेटिव आ रहा है कितना, 30,000 नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है कितना, 30,000। तो इसको यहाँ लिखेंगे नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर 30,000। फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आपका, 1,56,000। तो ये आपका नेगेटिव 1,56,000 है और ये पॉजिटिव है 1,56,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,26,000। तो ये आपका कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1,26,000, 1,26,000।
क्लियर है ये?